Hi dear students, welcome to Business Studies class. So we have started our ninth chapter, that is financial management, and in last video we have completed about what is mean financial planning and importance of financial planning. So in this video we are going to discuss about the what is mean capital structure. Okay, so name itself indicate what is the capital structure. So capital means what are the amount required to run out our business. Okay. To generate that capital, there are two ways. What you should do for the debt means you should take a loan from bank, from debentures, okay. And otherwise you can go for the equity, means you are going to collect the money from shareholders. So by using these two, we can collect our, we can generate our capital structure for our business. Okay. So what is mean capital structure? It is a proportion of debt and equity. It is a proportion of debt and equity. So how we can tell the capital structure? It is a proportion. That is capital structure is equal to debt by equity. Means how much you have debt for your business by equity. How much you have owner's fund for your business. Okay. So debt for debt we can call the borrowed fund. Because that money we are arranged for our business, we are borrowed that money for our business, that is the debt. Okay. And equity means owner's fund. We are shared the ownership with the shareholders, and if shareholders are given money for business means what? That is the equity. Or you can call the retained earning of your business also comes under the equity. Because it is a owner's fund. So what you earn money or retained earning from the last year you earned something retained earning, that is the equity for the next year of business capital structure. Okay. So equity, that is a owner's fund, and debt, that is a borrowed fund. When you are taking a debt for your business, you are taking a loan for your business, then you have to pay the interest on that debt. Is it right? Because you are taking a loan from a bank or from debenture, you have to pay fixed rate of interest there. Okay, instead of that money. And if you are taking an equity or owner's fund, so in that case you have to pay the dividend to your shareholders. Dividend to your shareholders. So both have the advantage and limitations also. So according to that, how much amount of debt you are using for your business and how much amount of equity you are going to use for your business, that is the capital structure. Because you have to use the both combination for your business. Singly and you go with the equity means that is not the good thing, because sometimes dividend rate it is also going to increase, earning per share it is going to be increased. So in that case, these have the limitations. Okay, and if you telling that I will go only with the debt, so that is also not the good thing for your business, because you have to pay the interest rate, you have to keep the security there, means you have to show some assets to refund your amount. Okay, so some limitations are with debts also there. Okay, so just I told you this is a complicated thing, so that's why I am explaining Hindi. So डेट और इक्विटी का मतलब क्या है? जो भी आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है बिजनेस के लिए, मतलब जो भी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, जितना भी आपको पैसा लगने वाला है बिजनेस में, तो वो आप पैसा डेट यूज के कितना पैसा यूज करोगे आपके बिजनेस के लिए, एंड इक्विटी कितना इक्विटी आप बिजनेस के लिए यूज करेंगे. डेट कहने की दूसरे से लोन देना फ्रॉम बैंक और फ्रॉम अ डिबेंचर्स, मतलब लोन लिया है मतलब वी हैव टू पे द इंटरेस्ट रेट, मतलब हमको ब्याज भरना पड़ेगा प्लस प्रिंसिपल अमाउंट. इक्विटी मतलब ओनर्स फंड, रिटेन्ड अर्निंग प्लस शेयर्स. ओके, सो दैट इज द इक्विटी. मतलब इक्विटी लिया है तो भी शेयर होल्डर को आपको डिविडेंड देना पड़ेगा, मतलब जितना भी आपका प्रॉफिट आया उसमें से आपको थोड़ा बहुत हिस्सा आपको शेयर होल्डर्स को देना पड़ेगा. तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं सभी बिजनेस में पैसा जो भी लगाऊंगा वो इक्विटी मतलब वो शेयर होल्डर से ही लगाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता. हो सकता है बट इट हैव आल्सो लिमिटेशंस. सो इक्विटी से सभी पैसा आपने कलेक्ट किया है तो आपको डिविडेंड पे करना पड़ेगा. इज इट राइट? और शेयर मार्केट में एंटर होने के लिए जो भी प्रोसेस है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड, एक्सपेंसिव, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. सो दैट इज वन ऑफ द लिमिटेशंस इफ यू गो फॉर द इक्विटी. और डेट यूज के सभी जो भी बिजनेस के लिए मुझे पैसा लगने
आपने डिसाइड किया तो उस लोन पे आपको इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा, आपको असेट दिखाना पड़ेगा, दैट इज द सिक्योरिटी दिखाना पड़ेगा बैंक को, और कंपल्सरी आपको इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। सपोज आपका बिजनेस लॉस में है तो तभी आपका कंपनी का असेट्स बेच के वो लोन चुकाना पड़ेगा, दैट इज द कंपल्शन इन केस ऑफ डेब्ट। सो debt also have some advantages and limitations, and equity also have some advantages and limitations. So according to that, according to the factors, you have to choose the debt or equity or combination of both. Okay, so debt का मतलब क्या है? लोन और डिबेंचर्स। ओके, सो लेस कॉस्ट, जो भी लेस कॉस्ट यानी कि यहाँ मतलब क्या है, जो भी डेbt लेने के लिए, लोन लेने के लिए जो भी कॉस्ट लगता है दैट इज द लेस कॉस्ट। मतलब वो प्रोसीजर करने के लिए, लोन लेने की प्रोसीजर करने के लिए कुछ तो डॉक्यूमेंट लगेगा, कुछ फॉर्मेलिटीज लगेगी, कुछ फीस लगेगा, सो दैट इज द लेस कॉस्ट। उस फीस का, उस डॉक्यूमेंटेशन का, उसका कॉस्ट क्या है? कम है। रिस्की, यस ऑब्वियसली डेब्ट इज रिस्की बिकॉज यू हैव टू शो सम असेट्स, इज इट राइट? नेक्स्ट, कंपल्सरी टू पे द इंटरेस्ट, मतलब जो भी लोन लिया है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा, दैट इज द कंपल्सरी। नेक्स्ट, फेल्स इफ द बिजनेस फेल्स टू पे द प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब जो भी लोन लिया है, सो सपोज आपने 100 रुपीज का लोन लिया है बैंक में से, उसका इंटरेस्ट रेट है 10%। ओके, उसका रेट है इंटरेस्ट रेट है 10%। सो पर ईयर आपको 10 रुपीज तो देना पड़ेगा, दैट इज द कंपल्सरी। इंटरेस्ट रेट तो आपको देना ही पड़ेगा, बट प्रिंसिपल अमाउंट भी मतलब 20 साल में दिए तो नेक्स्ट साल देना पड़ेगा। मतलब इट कैन बी प्रिंसिपल अमाउंट अभी ही देना है, ऐसा कुछ नहीं होता। हाउ मच इफ इट इज अ लॉन्ग टर्म लोन, मतलब कितना पीरियड दिया है उसके बाद आप 10 रुपीज दे सकते हो, बट पर ईयर इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। जब आपके प्रिंसिपल अमाउंट दोगे, मतलब बैंक में से लोन लिया है आपने 100 रुपीज का, तो इस साल लोन लिया है तो इस साल में मुझे वो 100 रुपीज वापस देने के लिए नहीं हुए, तो मुझे क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट रेट। सेकेंड नेक्स्ट ईयर भी वैसा ही हुआ, मुझे 100 रुपीज वापस देने के लिए नहीं हुआ तो मुझे 10 रुपीज तो देना पड़ेगा। ओके, सो जिस बार आप प्रिंसिपल अमाउंट वापस करोगे बैंक के लिए तभी आपका लोन कंप्लीट हो जाएगा। जब तक आप प्रिंसिपल अमाउंट जहाँ से आपने लोन लिया है, जब तक आपने प्रिंसिपल अमाउंट नहीं देते हो तब तक आपको इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा, दैट इज द कंपल्सन। ओके, जब आप प्रिंसिपल अमाउंट बैंक को देंगे तब इंटरेस्ट पे करने की कुछ आवश्यकता, मतलब लोन ही खत्म हो जाएगा। सो इफ द फेल्स टू पे द प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट आप देने के लिए काबिल नहीं हो तो यू कैन क्लेम द असेट टू पे द डेब्ट। तब क्या करना पड़ेगा? जो भी आपका बिजनेस का असेट्स है, प्रॉपर्टीज है, मे बी मशीनरीज रहेगा, फर्नीचर रहेगा, बिल्डिंग रहेगा, वो बेच के वो लोन चुकाना पड़ेगा, दैट इज द कंपल्शन। ओके, सो दीज आर द सम एडवांटेजेस ऑफ डेब्ट। एडवांटेज एक ही है, दैट इज द लेस कॉस्ट, मतलब ये प्रोसीजर करने के लिए आपका प्रोसीजर जल्दी से भी हो जाएगा, और जो भी फीस लगने वाली है वो प्रोसीजर, लोन लेने की प्रोसीजर करने के लिए दैट इज द लेस, दैट इज वन एडवांटेज। अदर्स आर मोस्टली लिमिटेशंस आर देयर। ओके, सो नेक्स्ट है इक्विटी। Okay, so equity that is the owner's fund, debt that is the borrower fund. So equity में क्या आएगा? शेयर्स आएगा and retained earning. Okay, so very expensive, मतलब see these are the owner's fund. Okay, owner's fund, but still it is expensive. Means what are the costs required for the procedure of shares? That is very expensive. अभी और डॉक्यूमेंटेशन आर आल्सो मोर, मतलब शेयर मार्केट में एंटर होना है तो लोगों से पैसा लेना है, दैट इज द शेयर्स इश्यूज करना है, तो व्हाट आर द प्रोसीजर रिक्वायर्ड टू इश्यूज द शेयर्स ऑफ योर कंपनी? सो इट इज एन एक्सपेंसिव प्रोसेस, इट टेक्स अ हाई कॉस्ट टू कंप्लीट दैट प्रोसेस, सो दैट इज अ वेरी एक्सपेंसिव, दैट इज वन ऑफ द लिमिटेशन, एक लिमिटेशन है। नेक्स्ट है debentures are risky because if you are not able to pay the debt or principal amount, so that time you have to claim your assets or properties. But in case of equity it is not like that.
that side is same. So not compulsory to pay the dividend in case of loss. So इक्विटी मतलब शेयर होल्डर से पैसा लिया है, शेयर्स इश्यूज किए हैं, तो आपको डिविडेंड देना पड़ेगा। जो भी आपका प्रॉफिट आया है उसमें से थोड़ा बहुत हिस्सा आपको शेयर्स होल्डर्स को देना पड़ेगा। बट इन केस ऑफ लॉस, सपोज योर बिजनेस अंडर द लॉस, सो दैट टाइम इट इज नॉट कंपल्सरी टू पे द डिविडेंड। सो लॉस में है तो डिविडेंड पे करना कुछ नेसेसरी नहीं है। सो दैट इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ इक्विटी। ओके, सो नाउ वी विल गोइंग टू सी व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग व्हेन चॉइस ऑफ दिस कैपिटल स्ट्रक्चर। मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स का स्टडी करना पड़ता है, मतलब डेट चूज करना है बिजनेस के लिए और इक्विटी चूज करना है, तो कौन से बेसिस पे चूज करें। सो दीज आर द 14 फैक्टर्स आर देयर। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ओनली 7 फैक्टर। इन नेक्स्ट वीडियो another 7 फैक्टर आई विल गोइंग टू एक्सप्लेन द थिंग्स। ओके, मींस फॉर बिजनेस यू हैव टू चूज द डेट आल्सो। आपको लोन भी लेना पड़ेगा बाहर से। So in which case you have to take a loan and in which case you have to take a equity. लोन भी लेना पड़ेगा, इक्विटी भी लेना पड़ेगा। एक किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, those factors we are going to learn. Okay. So these are the factors affecting choice of capital structure. So capital structure का अभी मतलब पता चला, that is the you have to choose the equity or debt. Okay, so what are the factors affecting to choose the debt and what are the factors affecting choose the equity? In which factor debt it have the more advantage, in which factor equity have the more advantage. So according to that you can decide to choose debt or equity for your business. Okay, so first factor is cash flow position of your business. Cash flow position of your business. Suppose if you have enough cash flow for your business, so you can go for the debt easily because you can able to pay the fixed rate of interest on that debt. If it is shortage cash flow, that time you can go for the equity because dividend you have to pay your dividend, but in case of loss there is no compulsion to pay the dividend. Okay, so according to that you can choose the equity. If you have enough cash flow for your business, choose the debt. If you have shortage of cash flow for your business, choose the equity. So इसका मतलब क्या है, cash flow position का मतलब क्या है? So whatever flow of cash within your business, flow of cash within your business. So how the flow? So take an example. Suppose take your example. My earning is X. Okay, and my expenses are also there. So what are my cash flow? अभी बिजनेस में कैश फ्लो मतलब बिजनेस में कितना पैसा आया है और उसमें से कितना पैसा गया है. हाउ मच इट इज क्रेडिटेड, हाउ मच इट इज डेबिटेड, दैट इज अ कैश फ्लो पोजीशन ऑफ अ बिजनेस. सो सभी बिजनेस में कैश फ्लो पोजीशन दिखाना कंपलसरी है. मतलब बिजनेस में कहाँ से पैसा है, लोन कहाँ से लिया है, क्या लिया है, वो सभी दिखाना पड़ेगा. एंड कहाँ पे वो पैसा खर्च हुआ है, ओके, वो भी दिखाना पड़ेगा. दैट इज द कैश फ्लो पोजीशन ऑफ योर बिजनेस. सो इनर कैश फ्लो मतलब आपके बिजनेस में बहुत सारा पैसा आ रहा है तो आप डेब्ट चूज कर सकते हो. मतलब बिजनेस में आपका कैश फ्लो अच्छा है, मतलब 2 मंथ में 2 डेज में आपको पैसा मिलता है, आपकी रिकवरी होती है, तो आपके पास पैसा अच्छा आता है बिजनेस में, तो आप डेब्ट चूज करो क्योंकि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करने के लिए आप लायबल रहते हैं. गॉट माय पॉइंट? व्हेन यू हैव इनफ कैश फ्लो फॉर योर बिजनेस, आपके बिजनेस में अच्छा कैश फ्लो आ रहा है इनफ, ओके, सो उसमें से हम इजीली इंटरेस्ट रेट दे सकते हैं, इंटरेस्ट पे कर सकते हैं, तो यू कैन गो फॉर द डेबिट. ओके, बट इफ द शॉर्टेज ऑफ कैश फ्लो मतलब आपके बिजनेस में इतना अच्छा कैश फ्लो नहीं है, कभी कभी पैसा आता है, एक्सपेंसेस आर मोर देयर, सो कभी कभी तो आता है शॉर्टेज ऑफ कैश फ्लो इट इज देयर, सो तब आप वो लोन का इंटरेस्ट रेट पे करने के लिए पॉसिबल नहीं है आपको. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, सो मतलब शॉर्टेज है आपके पास, पैसे की शॉर्टेज है, तो आपने लोन लिया तो वो लोन कैसे चुका पाओगे? आपके पास तो पैसे की शॉर्टेज है, आपके पास पैसा अच्छा आ रहा है, आपकी इनकम अच्छी है,
तो आप लोन ले सकते हो और लोन चुका भी सकते हो, क्योंकि आपके पास पैसा अच्छा आता है, योर कैश फ्लो पोजीशन इज इन गुड कंडीशन। बट आपके पास पैसा अच्छा नहीं आता, दैट मीन्स योर कैश फ्लो पोजीशन ऑफ योर बिजनेस इट हैव द शॉर्टेज ऑफ कैश फ्लो। आपके बिजनेस में इतना पैसा नहीं आता, एक ही बार में सभी पैसा आता है, डे टू डे एक कैश फ्लो नहीं होता, तो गो फॉर द इक्विटी। सो इक्विटी चूज करो, क्योंकि वहाँ पे डिविडेंड देना है, बट आपके प्रॉफिट में हो तो डिविडेंड देना, नहीं हो तो नहीं देना। सो यहाँ पे डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है। सो आपके पास पैसा कम है, कैश फ्लो कम है, तो चूज इक्विटी, क्योंकि डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है। प्रॉफिट में हो तो डिविडेंड दे दो, नहीं हो तो मत दे दो। बट आपके पास बिजनेस में पैसा अच्छा आ रहा है तो आप इजीली लोन ले सकते हो, क्योंकि आपके पास पैसा अच्छा है तो इजीली लोन चुका भी सकते हो। दैट इज द कैश फ्लो पोजीशन। सो इसके ऊपर भी आप डिसीजन ले सकते हो, इक्विटी चूज करना है और डेब्ट चूज करना है फॉर योर बिजनेस। सेकेंड है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, दैट इज ICR। अभी किसी भी बैंक में आप बिजनेस के लिए लोन लेने के लिए जाएंगे तो वो बैंक आपके कंपनी का ICR कैलकुलेट करते हैं। और अनदर वन थिंग आई विल एक्सप्लेन। सो ICR कैलकुलेट करके वो बैंक क्या देखते हैं कि आप लोन ले रहे हो और लोन का इंटरेस्ट रेट पे करने के लिए आपकी कंपनी लायबल है या नहीं, ये चेक करके बाय कैलकुलेटिंग ICR। मतलब आपने लोन लिया, आपको लोन चाहिए, बट आपको उस लोन का इंटरेस्ट रेट बैंक को दे सकते हो क्या नहीं, वो चेक करता है बैंक बाय कैलकुलेटिंग ICR। सो व्हाट इज द ICR? नंबर ऑफ टाइम्स कंपनीज अर्निंग before interest and taxes of a company covers the interest payment obligations। इसका मतलब क्या है? आपके बिजनेस में कितनी बार पैसा आता है, हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स अर्निंग मीन्स कंपनीज अर्निंग, कितनी बार पैसा आता है, उसमें से आप इंटरेस्ट दे सकते हो। फर्स्ट इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी दे सकते हो एंड टैक्सेस भी दे सकते हो, एंड फॉर द कंपनीज कवर द इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन। सो हाउ मच टाइम यू कैन अर्न विद इन योर बिजनेस। सो आप अच्छा कमाते हो बिजनेस में, ज़्यादा मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स, अभी विद इन 1 ईयर आपके बिजनेस में पैसा एक 20 बार 25 बार आता है, बिजनेस में अच्छा बार बार पैसा आता है, तो दैट इज हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स यू कैन अर्न। ओके, सो हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स यू अर्न मीन्स उस पैसे से आप टैक्स भी रेट पे कर सकते हो एंड इंटरेस्ट भी पे कर सकते हो। सो दैट इज द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। सो विद इन एन एग्जाम फॉर 1 मार्क दे आर गोइंग टू आस्क फॉर मल्टीपल चॉइस को पूछेंगे, नहीं तो लॉन्ग फॉर्म ICR का लॉन्ग फॉर्म पूछेंगे, दैट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। So interest coverage ratio, how we can calculate? So ICR, interest coverage ratio, is equal to EBIT. EBIT means before interest, that is earning before interest and taxes. EBIT यानी कि earning before interest and taxes divided by your interest. Earning before interest and taxes divided by interest. So suppose आपका ICR हाई है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हाई है, तो बोरोड फंड, क्योंकि आपके बिजनेस में बहुत बार पैसा आता है, दैट इज नंबर ऑफ टाइम्स कंपनीज अर्न मोर, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छा है आपकी कंपनी का, आप इजीली आपको लोन मिल सकता है, दैट इज बोरोड फंड कैन इंक्रीज, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस में पैसा आता है, बहुत बार बिजनेस में पैसा आता है, तो ऑब्वियसली हमें वो लोन चुकाने के लिए, इंटरेस्ट देने के लिए हम दे सकते हैं इजीली। सो इफ द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इट इज हाई, बैंक भी आपको इजीली लोन देंगी और आप भी लोन ले सकते हो, क्योंकि आप वो इंटरेस्ट पे करने के लिए लायबल हो। नेक्स्ट, सपोज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम है आपका बिजनेस का, तो आप लोन देने के लिए काबिल नहीं रहते, मतलब सॉरी इंटरेस्ट देने के लिए, इंटरेस्ट पे करने के लिए आपके पास पैसा नहीं होता, तो गो फॉर द इक्विटी, क्योंकि इक्विटी में डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है। जब लॉस है बिजनेस तब
कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। सो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छा है आपके बिजनेस का, सो गो फॉर बोरोड फंड क्योंकि यू कैन पे इजीली द इंटरेस्ट। कम है ICR, गो फॉर द इक्विटी बिकॉज you don't have to pay any dividend, means it is not compulsory to then pay the dividend. So next step, so the next factor which is going to affecting factors affecting the choice of capital structure, मतलब इक्विटी चूज करना है या डेट चूज करना है, टू फैक्टर्स वी आर कंप्लीटेड। सो ICR दैट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। सो व्हेन यू गो फॉर द लोन विद इन अ बैंक, सो बैंक में आप लोन लेने के लिए जाओगे तो एक तो बैंक कैलकुलेट ICR करेगा। तो ICR का मतलब क्या है, मतलब sorry for the disturbance. So when you taken a loan from a bank, तो बैंक ICR कैलकुलेट करती है और ये देखती है कि आपको लोन का इंटरेस्ट देने के लिए काबिल है या नहीं। सिर्फ इंटरेस्ट ही देना काफ़ी नहीं है, जो भी आपने लोन लिया है प्रिंसिपल अमाउंट वो भी आपको वापस देना पड़ेगा। सो वो प्रिंसिपल अमाउंट देने के लिए आपका कंपनी काबिल है या नहीं, ये बैंक कैसे देखती है, बाय कैलकुलेटिंग द डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, मतलब DSCR कैलकुलेट करके वो बैंक चेक करती है कि आप जो लोन ले रहे हो उस लोन का जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपका बिजनेस वापस करने के लिए काबिल है या नहीं। आपका DSCR उस बैंक में जितना लोन दे रहे उसके हिसाब से नहीं है तो बैंक आपको लोन नहीं देगी। सपोज टेक एग्जाम्पल, सपोज आपको 100 रुपीज़ एग्जाम्पल होंगे, सो सपोज आपको बिजनेस के लिए 100 रुपीज़ चाहिए, तो आप लोन लेने के लिए गए बैंक में, तो उसका इंटरेस्ट रेट है 10%। सो ICR में क्या देखता है बैंक, वो 10 रुपये 10%, वो 10 रुपये आप देने के लिए काबिल है या नहीं, ये कहाँ पे चेक करते हैं बैंक, ICR दैट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इट इज इंटरेस्ट कवर होता है या नहीं वो देखती है बैंक। सेकेंड थिंग डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, उसमें क्या बैंक चेक करती है, ये इंटरेस्ट प्लस जो भी प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपीज़ दिया है बैंक ने आपको, वो देने के लिए आपका बिजनेस काबिल है या नहीं, यहाँ पे बैंक चेक करते हैं। मतलब जो भी प्रिंसिपल अमाउंट आपने लिया है वो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट देने के लिए आपकी कंपनी काबिल है या नहीं, एक डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो से वो बैंक डिसाइड करते हैं। सपोज सो DSCR मीन्स रिटर्न ऑन इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब आपका बिजनेस प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट रेट पे करने के लिए काबिल है या नहीं ये चेक करती है। सपोज इफ DSCR इज हाई, मतलब आपका DSCR आपके बिजनेस का DSCR हाई है, मतलब आप इंटरेस्ट पे करने के लिए काबिल हो एज वेल एज वो प्रिंसिपल अमाउंट भी देने के लिए आपका बिजनेस काबिल है, तो इजीली गो फॉर द लोन, मतलब बैंक पे आपको लोन देगी और आप भी लोन चुका सकते हो क्योंकि आपका बिजनेस वो इंटरेस्ट देने के लिए और प्रिंसिपल अमाउंट देने के लिए काबिल है, तो गो फॉर अ डेब्ट। ओके, सपोज आपका DSCR कम है, इफ DSCR इट इज लो, सो गो फॉर द इक्विटी बिकॉज आपका DSCR कम है, मतलब वो इंटरेस्ट रेट देने के लिए आपका बिजनेस काबिल नहीं है, प्रिंसिपल अमाउंट जो भी लिया है वो देने के लिए आपका बिजनेस काबिल नहीं है, तो बिजनेस इंटरेस्ट तो कंपल्सरी पे करना पड़ता है। सो आपका बिजनेस काबिल नहीं है तो इंटरेस्ट पे करने के लिए देन गो फॉर द इक्विटी, क्योंकि यहाँ पे डिविडेंड देना कंपल्सरी नहीं है। सपोज आपका बिजनेस लॉस में है तो डिविडेंड देना यहाँ पे कंपल्सरी नहीं है, सो यू कैन चूज द इक्विटी हियर। ओके, सो दैट इज द DSCR एंड मैक्सिमम टाइम्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, दैट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट DSCR। So it is a formula to calculate the DSCR. So profit after tax, जो भी आपका प्रॉफिट इनकम आया है उसमें से टैक्स रेट सब्सट्रैक्ट करके जो भी प्रॉफिट आपके पास बचेगा प्लस डिप्रिसिएशन कॉस्ट मीन्स ऑल ऑफ यू नो। ओके, नेक्स्ट इंटरेस्ट एंड नॉन कैश एक्सपेंडिचर्स, व्हाट आर द एक्सपेंडिचर्स आर देयर। ओके, सो डिवाइडेड बाय प्रेफरेंशियल डिविडेंड, मतलब कितना अमाउंट आप डिविडेंड देते हो, सो दैट टू योर शेयर होल्डर, दैट इज अ प्रेफरेंशियल डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट रेट
प्लस रीपेमेंट ऑब्लिगेशन, कितना आपका रीपेमेंट ऑब्लिगेशन है, सो इट इज गोइंग टू एड हियर. ओके, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द डेट सर्विस कवरेज रेशियो. ओके, नेक्स्ट है मतलब डेट कवरेज सर्विस रेशियो आपका अच्छा है, इट इज हाई, सो आप इजीली लोन ले सकते हो, लोन चुका भी सकते हो. बट ये लो है डेट कवरेज रेशियो, तो आपको लोन तो नहीं मिलेगा. सो मिला तो भी आपको लोन चुकाने के लिए आपका बिजनेस काबिल नहीं होता, क्योंकि उतना आपका DSCR नहीं होता. नेक्स्ट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. सो व्हाट इज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? नेम इटसेल्फ इंडिकेट हाउ मच अमाउंट यू आर गेटिंग अ रिटर्न, how much amount you are getting a return on your investment. Take example, suppose आपने कहा तो एक 200 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है, आपने कहा तो 200 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है. ओके, उसमें से पर ईयर आपको 20 रुपीज़ का 10% का इंटरेस्ट मिलता है. ओके, सो आपने कहा तो एक तो इन्वेस्टमेंट किया है आपके बिजनेस के नाम पे ऊपर, नहीं तो आपके नाम पे ऊपर, तो उस इन्वेस्टमेंट में से पर ईयर आपको 10% रिटर्न मिलता है, इंटरेस्ट रेट मिलता है. मतलब कितना मिला आपको? 20 रुपीज़ पर ईयर आपको मिलते हैं. दैट इज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. सपोज आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इट इज हायर, और आपने यहाँ तो 100 रुपीज़ का लोन लिया है. ओके, सो 100 रुपीज़ का लोन लेने के लिए आपका 10% इंटरेस्ट रेट है, तो पर ईयर बैंक को आपको कितना देना पड़ेगा? 10 रुपीज़. आपका रिटर्न कितना है? 20 रुपीज़. आपका इंटरेस्ट पे करना कितना है? 10 रुपीज़. सपोज आपको आपका ROI दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इट इज हायर दैन द इंटरेस्ट रेट, मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट. जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसका रिटर्न आपको 20 रुपीज़ मिल रहा है पर ईयर, और जो भी आपने लोन लिया है उसका इंटरेस्ट रेट आपको 10 रुपीज़ पे करना है. जब आपका ROI दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इट इज ग्रेटर दैन रेट ऑफ इंटरेस्ट, सो इजीली यू कैन टेक अ डेट. मतलब आप लोन चुकाने के लिए काबिल हो, आप लोन ले सकते हो, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिल रहा है, तो वो रिटर्न आप इंटरेस्ट पे करने के लिए दे सकते हो इजीली. So ROI if it is a greater than the interest rate, so you can choose easily done. But आपका investment suppose your investment it is of 200 rupees, okay, and you are getting the interest rate of 3% interest rate उस पे है, तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के सारा 100 रुपीज़ को 3 रुपीज़ मिलता है, तो 200 रुपीज़ को आपको 6 रुपीज़ मिलेगा. ओके, 100 रुपीज़ को 3% मिलता है, दैट इज 3%, तो 200 रुपीज़ को कितना मिलेगा? आपको 6 रुपीज़ मिलेगा. और यहाँ पे सेम आपका जो भी लोन है 100 रुपीज़ का, उसका इंटरेस्ट रेट 10% आपको देना पड़ा है 10 रुपीज़. ओके, सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लेस, सो ये कम है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रादर देन योर इंटरेस्ट. तो आगे का 4 रुपीज़ कहाँ से पे करोगे? इज इट राइट? 6 रुपीज़ तो आपके पास आ रहा है, 4 रुपीज़ कहाँ से दोगे? सो दैट मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इट इज लेस दैन योर इंटरेस्ट रेट, सो दैट टाइम यू आर नॉट एबल टू पे द इंटरेस्ट रेट ऑफ योर लोन. सो गो फॉर द बेटर, यू कैन चूज द इक्विटी, क्योंकि यहाँ पे डिविडेंड देना इन केस ऑफ लॉसेस कंपल्सरी नहीं है. ओके, so that is the return on investment. So according to that, if the return on investment it is good, easily go for the debt. If return on investment is less, go for the equity. Now next factor, the next factor is tax rate. So whatever the tax rate for your business, so according to that also you can choose the debt and equity. Suppose the tax rate it is high, so go for the debt. If the tax rate it is low, and go for the equity. So why? If the tax rate is high, so आप तो सोच रहे होंगे कि टैक्स रेट ज़्यादा है, और आप बोल रहे हो कि डेब्ट लेने के लिए, मतलब लोन लेने के लिए जाओ तो आपको टैक्स रेट में पे करना पड़ेगा और इंटरेस्ट में पे करना पड़ेगा, तो डबल एक्सपेंसेस आर देयर, नो. सो इट इज़ नॉट लाइक दैट. टैक्स रेट हाई है
सी व्हेन यू आर गोइंग टू पे योर टैक्स, आपका बिजनेस का आप टैक्स कब पे करते हो? जब आपका इनकम आता है। तो इनकम, उसमें से प्रॉफिट निकाला जाता है, जो भी प्रॉफिट आएगा प्रॉफिट। सो प्रॉफिट में से जो भी टैक्स है वो सब्सट्रैक्ट करेंगे, वो टैक्स निकाल के जो भी आपकी अमाउंट बचेगी, जो भी आपका नेट प्रॉफिट होगा, उसके ऊपर टैक्स रेट रहता है, ना कि होल इनकम के ऊपर। टैक्स किस रेट पर लगा जाता है? टैक्स रेट सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो अमाउंट बचती है उसके ऊपर टैक्स रेट रहता है। सो यहाँ पे मतलब इंटरेस्ट देने के बाद जो भी टैक्स अमाउंट बचेगी, इंटरेस्ट देने के बाद, सो इसमें से भी प्रॉफिट में से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद आपको टैक्स। सिंपली टेक एग्जाम्पल, सपोज योर इनकम इज ऑफ 100 rupees, your income is of 100 rupees and you have to pay the 10 rupees of interest. If it is your income is 100 rupees and you have to pay the interest of 10. आपका इनकम 100 रुपीज़ है और कहाँ से तो आपने लोन लिया है, उसका इंटरेस्ट रेट आपको 10 रुपये देना है। तो इंटरेस्ट रेट देने के बाद आपका इनकम कितना बचा? 90 रुपीज़ बचा। तो इसके ऊपर टैक्स रेट लगता है, क्योंकि जो भी आपका लोन इंटरेस्ट रेट है वो देने के बाद टैक्स रेट रहता है, इसलिए गो फॉर द डेप्ट दिखाया, लोन दिखाया तो आपका टैक्स रेट कम होगा, लोन नहीं दिखाया तो आपका टैक्स रेट बढ़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब बिजनेस में आपका लोन है तो आपको टैक्स रेट कम लगता है, मतलब वो लोन का इंटरेस्ट देने के बाद जो भी अमाउंट बचेगी उस अमाउंट पे आपका टैक्स रेट रहेगा। बट लोन नहीं है आपके बिजनेस में तो आपको टैक्स रेट ज़्यादा देना पड़ेगा। सो यहाँ पे 100 रुपीज़ इनकम है, उसमें से 10 रुपीज़ आपको इंटरेस्ट देना है, तो जो बचा 90 रुपीज़ उसके ऊपर टैक्स लगता है। तो 90 रुपीज़ के ऊपर टैक्स लगेगा, मतलब कम टैक्स लगेगा, इसलिए लोन लेने के लिए जाओ। बट इक्विटी मतलब आपके पास 100 रुपीज़ है और यहाँ पे आपको डिविडेंड देना है 100 रुपीज़ का, तो डिविडेंड के ऊपर टैक्स रेट रहता है, डिविडेंड सब्सट्रैक्ट नहीं होता। तो इन केस ऑफ इक्विटी आपको 100 रुपीज़ के ऊपर ही आपको टैक्स रेट देना पड़ेगा, ना कि 90 रुपीज़। आपका डिविडेंड देना है, फिर भी यहाँ पे आपको 100 रुपीज़ के ऊपर आपकी इनकम के ऊपर ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। सो दैट्स वाई टू मिनिमाइज द टैक्स रेट गो फॉर द डेब्ट, अदरवाइज इफ यू वांट टू गिव द मोर टैक्स गो फॉर द इक्विटी, क्योंकि इक्विटी यहाँ पे डिविडेंड देना पड़ता है, फिर भी टैक्स रेट सब्सट्रैक्ट नहीं होता है यहाँ पे। बट इंटरेस्ट देना है किसी को, तो आप लोन चुकाने वाले हो आपका बिजनेस का, उसका इंटरेस्ट रेट अमाउंट पे करना है, तो जो भी इंटरेस्ट रेट आपके इनकम में से सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो भी अमाउंट आएगी उसके ऊपर टैक्स लगेगा। जब आप लोन लेंगे तो लोन लिया तो टैक्स रेट कम है, और इक्विटी लिया, ओनर्स फंड लिया है तो टैक्स रेट ज़्यादा है। सो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन चूज विच इज़ द बेस्ट डेब्ट, मतलब टैक्स रेट कम चाहिए तो गो फॉर द डेब्ट, टैक्स रेट ज़्यादा चाहिए तो गो फॉर द इक्विटी। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी मीन्स व्हाट? इक्विटी शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट टू इंक्रीज देयर अर्निंग पर शेयर, मतलब जो भी हमने शेयर्स इश्यूज किए हैं, सो इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो भी शेयर्स इश्यूज किए हैं, सो उसके बदले में शेयर होल्डर से पैसा हमने लिया है, तो उसके बदले में जो भी हमारा प्रॉफिट आएगा, जो भी हमारा इनकम होगा, उसमें से थोड़ा बहुत हिस्सा हम इक्विटी मतलब प्रॉफिट में से हिस्सा शेयर होल्डर को देना पड़ता है। तो वो अमाउंट इंक्रीज होती है जब, मतलब अभी इस साल हमने डिसाइड किया कि 10% डिविडेंड देंगे, 10% जो भी हमारा प्रॉफिट आया उसमें से 10% शेयर होल्डर्स को देंगे। ओके, बट शेयर होल्डर्स को क्या लगता है 10% से ज़्यादा होना चाहिए। सो नेक्स्ट ईयर में भी 20% हुआ, नेक्स्ट ईयर 30% हुआ, तो दैट इज अर्निंग पर शेयर, मतलब शेयर होल्डर को इंक्रीज, उन्होंने एक बार ही पैसा दिया है, 100 रुपीज़ ही एक बार दिया है, वो क्या बार बार नहीं देते शेयर होल्डर्स, एक बार दिया है, बट डिविडेंड हमको पर ईयर देना पड़ेगा ना,
सो इस ईयर हमने 10 रुपीज़ दिया, नेक्स्ट ईयर 20, नेक्स्ट ईयर 30%. सो इफ द अर्निंग पर शेयर इंक्रीज, तो आपको ज़्यादा अमाउंट देना पड़ेगा क्योंकि डिविडेंड रेट फिक्स नहीं रहता. अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट यू हैव टू फिक्स द डिविडेंड रेट. ओके. इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी मतलब जितना प्रॉफिट आया उसमें से मतलब कितना प्रॉफिट आया उसके ऊपर डिसाइड होता है कि शेयर होल्डर्स को कितना देना है. सो शेयर होल्डर्स को क्या लगता है, अर्निंग पर शेयर, जो भी शेयर हमने लिया है उसके ऊपर ज़्यादा डिविडेंड हमें मिलना चाहिए, ऐसा शेयर होल्डर्स को लगता है. तो ये जब इंक्रीज होगा डिविडेंड रेट तो आपको लॉस है क्योंकि शेयर होल्डर्स को इतना पैसा आपको देना पड़ेगा. तो इतना पैसा देने से अच्छा है गो फॉर अ डेबिट, क्योंकि फिक्स रेट है. क्योंकि एक बार आपने फिक्स किया 10% का इंटरेस्ट देना है तो आपको लोन चुकाने तक 10% ही देना पड़ेगा आपको, ना कि ज़्यादा. बट शेयर होल्डर्स से आपने शेयर्स इश्यूज किया है, शेयर होल्डर से पैसा लिया है, तो पर ईयर डिविडेंड रेट इंक्रीज होता जाएगा और शेयर होल्डर्स को भी इंक्रीज डिविडेंड रेट चाहिए. तो यहाँ ज़्यादा अमाउंट देने से अच्छा है, शेयर होल्डर्स को ज़्यादा अमाउंट देने से अच्छा है फिक्स रेट ऑफ लोन ले लो, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर लो, इजी थिंग्स. अर्निंग पे पर शेयर इंक्रीज हो गया तो दैट इज द difficult for the business because we have to pay the more amount to our shareholders. Suppose earning per share increase, if earning per share increase, go for the debt. So ये देने की आवश्यकता नहीं, इंटरेस्ट रेट ना पे करो. If the earning per share decrease मतलब अभी 10% है, उसके बाद 5% पे आया है अर्निंग पर शेयर, उसके बाद 2% पे आया है, तो गो फॉर द इक्विटी, क्योंकि यहाँ पे डेब्ट और डिविडेंड कम देना पड़ता है. सो व्हाट इज द शेयर मार्केट, इफ द रेट इज इन अर्निंग पर शेयर इट इज इंक्रीजिंग, सो डोंट इश्यूज द शेयर्स, गो फॉर द डेब्ट. इफ द अर्निंग पर शेयर इट इज डिक्रीज, गो फॉर द इक्विटी. नेक्स्ट वन इज फ्लोटेशन कॉस्ट. सो फ्लोटेशन कॉस्ट मीन्स what are the costs required to issue the shares. Otherwise, what are the costs required to issue the shares or to take a loan? Okay, so to issue the shares, the cost involving issues of shares. So what are the costs required to issue the shares means what? आपको लोगों से पैसा लेना है, शेयर होल्डर से पैसा लेना है, तो उसके लिए बहुत सारी लंबी प्रोसीजर करना पड़ेगा. तो प्रोसीजर करने के लिए जो भी पैसा लगेगा, मे बी एडवर्टाइजिंग करना पड़ेगा, नेक्स्ट प्रॉस्पेक्टस देना पड़ेगा, दैट इज द एडवर्टाइजिंग. लीगल फॉर्मेलिटीज आर मोर मीन्स यू हैव टू पे द फीस ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज. सो उसके ऊपर जो भी पैसा इन्वेस्ट होता है मतलब शेयर्स लेने के लिए, शेयर्स इश्यूज करने के लिए, उसके ऊपर जो भी पैसा इन्वेस्ट होता है दैट इज द फ्लोटेशन कॉस्ट. मतलब एडवर्टाइजिंग करना पड़ेगा, सेकेंड थिंग प्रॉस्पेक्टस देना पड़ेगा शेयर होल्डर्स को. नेक्स्ट व्हाट आर द थिंग्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स आर देयर, लीगल डॉक्यूमेंट का फीस देना पड़ेगा. सो व्हाट आर द कॉस्ट, दैट इज द फ्लोटेशन कॉस्ट. सो इन इक्विटी शेयर्स, इन ओनर्स फंड जो भी कॉस्ट फ्लोटेशन कॉस्ट लगता है वो हाई है. सो इफ यू वांट टू चूज द हाई फ्लोटेशन कॉस्ट यू कैन गो फॉर इट. एंड इक्विटी दैट मीन्स फ्लोटेशन कॉस्ट फॉर इक्विटी इज हाई एंड फॉर डेब्ट इट इज लो. सो बैंक में से लोन लेना है, डिबेंचर से लोन लेना है, तो उसके लिए ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं लगता, ज़्यादा फीस नहीं लगता. सो इजीली विद इन अ लेस कॉस्ट आपको लोन मिल सकता है. सो you can choose a debt. Okay, so these are only 7. In this video just I explain the 7 factors which are going to affecting for the choice of capital structure. What are another 7 factors I will explain in next video. I hope you got the clear concept about what is mean capital structure and how you are going to choose the capital structure. So which are the factors affecting on capital structure. Okay, so suppose if you have doubt, we will clarify your doubt within the live class. So thank you so much. Bye bye. Take care.